کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے تم سب چھپ جاؤ, میں ڈھونڈتی ہوں. جاؤ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 میں آ جاؤں. آ جاؤ. آ جاؤ. آ جاؤ. مٹھو پکڑ لوں گی. ارے مٹھو پکڑ لیا تمہیں. ارے تمہیں ہی پکڑ لیا. او ان پودوں کی طرف دیکھو, کسی نے انہیں پانی نہیں دیا. کتنے سوکھ کر بے جان ہو چکے ہیں. جلدی کرو, ہم کچھ پانی لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. او خالہ ہماری. ارے چپ کرو, خالہ جان سن لیں گی. السلام علیکم خالہ, آپ کیسی ہیں؟ مینا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہم تو پودوں کو پانی دے رہے تھے. پتہ ہے خالہ, اگر پودوں کو پانی نہ ملا تو وہ مر جائیں گے. میں نے تمہیں ہنستے ہوئے سنا تھا. چلو فوراً میرے ساتھ گھر چلو. اوہ اچھا. بھئی میں کافی دنوں سے تمہارے ہاں آنا چاہ رہی تھی. ہم تو خوش ہیں, آخر کار آپ آ ہی گئیں. دیکھیے تو ہماری رانی بٹیا 8 ماہ کی ہو گئی ہے. تو تمہارے ایک اور لڑکی ہو گئی؟ تو اور کیا, ہم تو دوسری بیٹی پیدا ہونے پہ بہت خوش ہیں. ارے اس کی شکل تو بالکل مجھ پہ گئی ہے. جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں بالکل. ہاں بالکل مجھ پہ. کتنی پیاری بچی ہے یہ تو میری چھوٹی سی شہزادی ہے. بس بس بس, رونا نہیں رونا نہیں. میں نے باہر مینا کو کھیلتے ہوئے دیکھا. یہ بڑی شرارتی ہو گئی ہے. ابھی ماشاءاللہ بڑی ہو رہی ہے. اسے یوں گاؤں میں نہ پھرنے دیا کرو. یہ اپنے اسکول کے دوستوں کے ساتھ کھیل رہی ہوگی. ہاں اسکول؟ تو کیا اب یہ اسکول بھی جاتی ہے؟ ہاں, اور یہ پڑھائی میں بہت اچھی ہے. مینا کو تو گھر پہ رہ کے گھر کے کام سیکھنے چاہیے. ہاں وہ بھی سیکھ رہی ہے, لیکن یہ اسکول جا کر بہت سی کام کی باتیں سیکھتی ہے اور پھر میری زیادہ بہتر طریقے سے مدد کرتی ہے. تم تو اس طرح لڑکی کو خراب کر دو گی, وہ ضرورت سے زیادہ ہی سیکھ جائے گی. کیوں خالہ, کیا کچھ سیکھنا اچھی بات نہیں؟ دیکھا تم نے میں کیا کہہ رہی تھی ابھی. مگر جو جی میں آئے کرو. ہاں راجو میرا پیارا بچہ, آؤ میرے پاس بیٹھو. میں تو یہ سن کے حیران ہو گئی, تمہاری بہن اسکول بھی جاتی ہے؟ جی ہاں, میں اور مینا اکٹھے اسکول جاتے ہیں. مینا اسکول جاتی ہے. بدتمیز, کیا تمہارے پاس اس کے لیے پنجرا نہیں ہے؟ نہیں مٹھو, ایسے ہی رہتا ہے اور مینا کے ساتھ ہر جگہ جاتا ہے. ہاں طوطوں کو تو پنجروں میں بند رکھنا چاہیے. نہیں خالہ, مٹھو پنجرے میں نہیں رہ سکتا. اس کو تو میں دیکھ لوں گی. یہ طوطے کا پنجرا کتنے کا ہے؟ 10 روپے کا ہے یہ. نہیں بھائی, میں تو 6 روپے ہی دوں گی. یہ میں مینا کے طوطے کے لیے لے رہی ہوں, سمجھے؟ اگر اس طوطے کے لیے ہے پھر تو 6 روپے ہی ٹھیک ہیں. ہاں بھائی, کدھر ہے وہ طوطا؟ ہائے ہائے ہائے, ہوئی ہوئی, مل گیا. ارے وہ طوطے فوراً خود ہی اس میں آ جا. آ مٹھو, آ دیکھ مٹھو میں تیرے لیے کیا لائی. آ جا, آ جا, آ جا. آہا, دیکھا بے وقوف طوطے, تجھے پکڑ لیا نا. کتنا اچھا موسم ہے. اچھی ہوا چل رہی ہے. ارے مٹھو کو دیکھو. بیچارہ مٹھو. اوف اللہ, اس کو بہت دست آ رہے ہیں, میں کیا کروں. ہائے ہائے, کیا خبر سنا رہی ہو. ارے میں تو وہ دن نہیں بھولتی جب میری اکلوتی بچی اس منحوس بیماری کا شکار ہوئی تھی. ہائے اب کیا ہوگا. میں تو خود بہت پریشان ہوں. رانی اچانک کتنی کمزور ہو گئی ہے. دیکھیے نا, نہ اس کی آنکھوں میں رونق ہے اور نہ آنکھیں کھول رہی ہے.
मीना मैं इसका क्या करूं? देखो तुम्हारे अब्बा भी घर नहीं है, पता नहीं कब आएंगे वो। मैं अपनी उस्तानी से जाके पूछती हूँ, उन्हें हमेशा पता होता है कि क्या करना चाहिए। तो तुम्हारा ख्याल है कि तुम इस बहाने फिर गांव में उछल कूद करने चली जाओगी? काला जाने दो ना। हाँ हाँ, इसे जाने दे, जल्दी आ जाएगी। जाओ। आजा राजू। खुदाफिज मिट्टू। देखो तो क्या आफत लड़की है ये। हाँ? अरे वापस आ। जल्दी करो, बारिश तेज हो रही है। इस वक्त कौन आ गया? राजू, मीना, इस वक्त इतनी बारिश में तुम बाहर क्यों फिर रहे हो? हम बहुत परेशान हैं। हमारी बहन बीमार है, उसे दस्त आ रहे हैं और कैब भी आ रही है। हाँ? वो ठीक हो जाएगी ना? घबराओ मत, अगर तुमने मेरी बात पर फौरी अमल किया तो वो ठीक हो जाएगी। जब भी किसी को दस्त की बीमारी हो जाए तो फौरी तौर पर उसे काफी मिकदार में पीने के लिए कुछ न कुछ देते रहना चाहिए। वो क्यों? देखो मैं समझाती हूँ। डॉक्टरों का कहना है कि दस्त बहुत खतरनाक बीमारी है। इन तस्वीरों की तरफ देखो। जब बच्चे को दस्त आते हैं तो उसके जिस्म का पानी पतले दस्तों की सूरत में निकल जाता है। जैसे जैसे जिस्म से पानी निकलता है तो बच्चा कमजोर होने लगता है। कमजोरी से बचने के लिए तुम्हें अपनी बहन को ज्यादा से ज्यादा मिकदार में पीने की चीजें पिलाना चाहिए ताकि उसके जिस्म में पानी दोबारा पहुंच जाए। इस तरह बच्चा तंदुरुस्त होने लगता है। क्या ऐसा करने से दस्त खत्म हो जाता है? नहीं, मगर बच्चे की जान बच जाती है। अगर बच्चे के जिस्म से बहुत ज्यादा पानी जाया हो जाए तो वो मर भी सकता है। तो पीने को क्या देना चाहिए? घर में पीने की जो भी चीज मौजूद हो दी जा सकती है, जैसे दही की लस्सी, और अगर घर में मौजूद नीमकोल या ORS हो तो वो भी दिया जा सकता है। मेरी बहन तो दूध पीती है। ये तो बहुत अहम है। बच्ची को ज्यादा से ज्यादा माँ का दूध देते रहना चाहिए। और जल्दी घर जाओ अब और अपनी माँ को बताओ कि बच्ची को ज्यादा मिकदार में पीने के लिए कुछ न कुछ देती रहे। लेकिन बाहर तो सख्त बारिश है। हमारे पास वक्त नहीं है जाया करने के लिए। रानी की मदद को हमें फौरन जाना चाहिए। आहा, मिट्टू। ओह, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गए हो। अब जल्दी जाके माँ को बताओ कि रानी को बहुत सारा पीने को दे। हाँ ठीक है, अब जल्दी जाओ, हम पीछे आ रहे हैं। जाओ। मीना और राजू आते ही होंगे। मीना को मालूम होगा कि क्या करना है। उफ, इतनी बारिश हो रही है बाहर, तूफानी बारिश है, बहुत बारिश है। बच्चे कहाँ हैं? वो रानी बीमार है ना, बच्चे उस्तानी से इसके बारे में पूछने गए हैं। इस तूफान में? मैं जाकर देखता हूँ उनको। अरे मिट्टू, तुम क्या कह रहे हो? क्या बात है? आए, चुप हो जाओ बदतमीज तोते। अरे शायद ये मीना का कोई पैगाम लाया है। दस्तों का इलाज तो ऐसे नहीं होता, हम तो ऐसा नहीं करते थे। लेकिन तुम बच्ची को कुछ पिला कर तो देखो, फिर देखते हैं क्या होता है। और मैं चाहता हूँ बच्चों को देख के आता हूँ। हाँ शाबाश, पी लो। शाबाश। अरे क्या बेवकूफी है, एक तोते की बात का भरोसा करते हैं भला। मगर जो जी में आएगा। आजकल बड़े बूढ़ों की कौन सुनता है। क्या मिट्टू ने आपको कुछ बताया है कि क्या करना है? हमने रानी को पीने के लिए काफी कुछ दे दिया है। ओह, ये देखो, वो मुझे देख के मुस्कुरा रही है। लगता है अब इसकी तबीयत ठीक हो गई है। हमें इसे पीने के लिए कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। हम ऐसे ही करेंगे मीना। हमारी उस्तानी ने कहा था कि अगर बच्ची क्या करे तो घबराना मत। पीने की चीजें देते रहना चाहिए थोड़ी थोड़ी मिकदार में, जब तक दस्त रुक ना जाए। रानी को तो अभी भी दस्त आ रहे हैं। हमें परेशान नहीं होना चाहिए। इतना पिलाने के बाद अब ये काफी ठीक है। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। देखो तो मुस्कुरा रही है।
जरा इस प्यारी सी गुड़िया को मुझे तो दो। हालांकि ये पहले से बेहतर नहीं लग रही। हाँ, शायद इतना सब पिलाना ठीक ही था। अस्सलाम वालेकुम। रानी की तबीयत अब कैसी है? हाँ, पहले से बेहतर है, लेकिन दस्त से अभी भी आ रहे हैं। इसके पखाने में खून तो नहीं आ रहा? नहीं तो फिर खतरे की कोई बात नहीं और ना ही किसी दवा की जरूरत है। दस्त आमतौर पर 2 या 3 दिन में खुद ही रुक जाते हैं। इसके बाद भी अगर बेहतर न हो तो डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगर हम रानी को खाने पीने के लिए कुछ न कुछ देते रहे तो ये पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाएगी ना? हाँ, और इसे 2 हफ्ते तक रोजाना ज्यादा खाने की भी जरूरत है। मीना, तुम्हें मालूम है कि तुमने अपनी बहन की जान बचा ली है? हाँ मिट्टू, और तुम